Hello friends, today we begin class 12 Indian Economy chapter 2, that is Indian Economy 1950 to 1990. See, India came up with new economic policies in 1950s. In 11th class, you must have studied about economic system, central problem of an economy, what to produce, how to produce, for whom to produce, and how these are solved. There are three economic systems. India had the choice to adopt any of these three. First was market economy or capitalist economy, where it is called laissez-faire. Government has least role. Most of the problems are solved through market forces of demand and supply. There is free market of the free market economy like in developed countries, USA, Japan, Europe. Then we had choice of socialist economy, which was there in China, Soviet Union, and communist countries, where everything was under the control of government. But we adopted for mixed economy, where private sector and public sector coexist. There was mainly control of government, but private sector was also allowed to compete in certain areas. We adopted 5-year plan initially. Plan means you spell out what you have to achieve in 5 years, how will you achieve, from where you will arrange the resources, and how things will be done in an economy. So India went for economic planning. There are certain objectives of the plan. First was growth in GDP, because until and unless you have growth in GDP, you cannot provide better quality life, better employment, better health, better infrastructure, better education to your citizens. First was growth of an economy, then modernization of the nation, modernization of Indian industry. When Britishers left India, a large part of our industry and agriculture land that went to Pakistan. So things were to be modernized. Then we were heavily dependent on Britishers. In past chapter we studied how Britishers killed our industry. They were exporting raw material from here and we were importing finished product from there. But nation felt that we have to be self-reliant. We have to produce all the goods that we require. Equity was another important objective. Equity means samanta. During the British rule and prior to that also, there was very big gap between rich and poor. There were poor peasants who did not have land. उनका काफ़ी शोषण होता था. There were rich farmers, landlords who were very rich. There were kingdoms who were very rich. So in our 5-year plan, important objective was equity. That is reducing inequality in income and wealth, and also reducing inequality among regions. Certain region like Mumbai, Pune, Thane, Gujarat, Madras, they were flourishing, they were doing very well. कुछ एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, वहीं कुछ में गरीबी बहुत थी, like बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नेशन, उड़ीसा. So equity was important objective. Full employment was another very important objective that we tried to achieve through our 5-year plans. Our 5-year plans begin with 1951. मार्च 1950 में सारी तैयारी हो गई थी. 1951 से हमारे 5-year प्लान शुरू हुए थे. 5-year प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट था एग्रीकल्चर, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तब हमने देखा एग्रीकल्चर की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी. कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, रेन डिपेंडेंट था, टेक्निक पुरानी थी, लोगों के पास ज़मीन नहीं थी. तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लेके आई. सबसे पहले इंटरमीडिएट ख़त्म करो, जो बिचौलिए थे उनको हटाओ. जिसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म थे, लेबर रिफॉर्म थे, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड अदर रिफॉर्म थे. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में सबसे पहले था बिचौलिया हटाओ, जिससे कि किसान का भला हो सके. इन ज़मींदारों को, बिचौलियों को हटा के जो इनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन है, उसको ज़मींदारों को ज़रूरत नहीं होती थी कई बार पूरी ज़मीन की खेती करने की, क्योंकि कुछ ही उनके हिस्से पे इतना अन्न उगा देते थे पीजेंट्स कि उनका अपना पेट भर जाता था. लेकिन देश को तो ज़रूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती की जाए, तो लैंड सीलिंग लाई गई, जिसमें कि एक लिमिट लगा दी गई कि कोई एक लिमिट से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकता है, लैंड सीलिंग. लेकिन ये केवल वेस्ट बंगाल और केरला जैसे स्टेट में ही सक्सेसफुल हुई. बाकी एरिया में क्या था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे
वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिल गए जाके और अपने लैंड को बचा ले गए। जबकि केरला वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट काफ़ी डोमिनेंट थे, तो वहाँ पे लैंड सीलिंग काफ़ी सक्सेसफुल हुई। देन टेक्निकल रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाई गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, सेल्फ सफिशेंसी पे ध्यान दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया गया, रूरल इनकम बढ़ाने पे जोर दिया गया। देन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से डेवलप हुई। जैसे इंडिया में फर्टिलाइज़र पहले नहीं बनता था, फर्टिलाइज़र बनने लगा। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, इनकी इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ गई। और कुछ कंट्रीज़ में, कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा हुआ, जैसे तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी, पंजाब, इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ लिमिटेशन भी थे, जैसे कि कुछ ही क्रॉप्स पे अप्लाई हो सका, कुछ एरियाज़ में अप्लाई हो सका, कुछ रीजन्स अच्छा कर गए, कुछ अच्छा नहीं कर पाए। सब्सिडी एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट होती है। कुछ लोगों का कहना है सब्सिडी दी जानी चाहिए, कुछ का कहना है सब्सिडी का मिसयूज़ होता है। कई एक जगह हमने देखा सब्सिडी के काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी आए हैं, पर बहुत जगह ऐसा देखा कि सब्सिडी में करप्शन भी हो रहा है। तो ये सब्सिडी वाले टॉपिक को ज़रा ध्यान से स्टडी करिएगा। जनरल रिफॉर्म में था क्रेडिट फैसिलिटी। गांव में लोन नहीं दिए जाते थे फार्मर्स को, मनी लेंडर्स वो लोन लेते थे तो कभी उभर नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो क्रेडिट फैसिलिटी देना, इरिगेशन फैसिलिटी देना, ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें कि किसान अपनी फसल को सही चैनल्स के थ्रू सही रेट पे बेच सके। गवर्नमेंट लेके आई MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें किसान की फसल का एक सर्टेन अमाउंट दिया जा सके। ये भी कुछ फसल में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एग्रीकल्चर के बाद आती है इंडस्ट्री। जब हम आज़ाद हुए हमारी इंडस्ट्री की काफ़ी ख़राब कंडीशन थी। प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा इंसेंटिव था नहीं, फंड्स भी नहीं थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें दे दी जाएं, तो PSUs को खड़ा किया गया। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास ज़्यादा PSUs नहीं थे, लेकिन कंट्री के आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी सारे PSUs को खड़ा किया। डैम्स बनवाए पब्लिक सेक्टर में पावर जनरेशन बढ़ानी शुरू करी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल नहीं थी, इंसेंटिव नहीं था। देन सोशल जस्टिस तभी हो सकता था जब PSUs खड़े हों। प्राइवेट सेक्टर के पास सारे अगर अर्निंग एसेट चले जाएंगे तो फिर वही अमीरी गरीबी की खाई बढ़ जाएगी। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज़ रिजर्व की। ये 3-4 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। पहली इंडस्ट्री जिसमें पहले कैटेगरी जिसमें 17 इंडस्ट्री थी शेड्यूल 4 में, जो कि सारी की सारी गवर्नमेंट सेक्टर में थी। सॉरी, शेड्यूल A में जो सारी गवर्नमेंट सेक्टर में थी। सेकंड कैटेगरी जिसमें 12 इंडस्ट्री थी, जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट कर सकता था। थर्ड कैटेगरी शेड्यूल C थी, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर अलाउ किए गए थे। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग काफ़ी थी उस टाइम, इंडस्ट्रियल कंसेशंस भी थे। यानी कुछ एरिया में अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं या कुछ टाइप की इंडस्ट्री गवर्नमेंट चाहती है वो लगा रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलते थे। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इनकरेज किया। स्मॉल स्केल खादी इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कम होता है, लेबर इंटेंसिव होती हैं, जॉब्स क्रिएट करती हैं, चारों तरफ फैलाई जा सकती हैं, मतलब आपका रीजनल इम्बैलेंस ख़त्म हो सकता है। जब काफ़ी सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो अमीरी गरीबी की खाई भी कम हो सकती है। जो हमने ट्रेड पॉलिसी है उस समय अडॉप्ट की, दैट वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट थे। जब देश आज़ाद हुआ हम काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स के ऊपर और भी दूसरे देशन पे इंपोर्ट डिपेंडेंट थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम इंडिया में ही बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दिया। जो चीज़ हम बाहर से ला रहे हैं उसको इंडिया में ही बनाना है। जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी, इट वाज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी और आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आउटवर्ड लुकिंग में एक्सपोर्ट प्रमोशन। इस पॉलिसी के काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए। इंडस्ट्री का शेयर GDP में बढ़ा। एग्रीकल्चर करीब 75% के आसपास था किसी टाइम, और इंडस्ट्री आपकी हार्डली 10% के आसपास भी नहीं थी। इंडस्ट्री का सेक्टर इसमें बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ी, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया इंडस्ट्री को।
एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। लेकिन उसमें क्या था, जब पब्लिक सेक्टर आया तो उनकी मोनोपोलीज हो गई, वो कई बार इनएफिशिएंट थी, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया गया था और सारे की सारी पब्लिक सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्रियल पावर कंट्री की कंसंट्रेट हो गई। कई बार गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज़ को चला रही थी जो कि अनवायबल थी, मतलब नुकसान हो रहा था, उसके बाद भी कंट्री के रिसोर्सेज उनमें डाले जा रहे थे। लाइसेंसिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, इसका मिसयूज़ होने लगा। जिन लोगों की राजनीतिक पकड़ थी वो काफ़ी सारे लाइसेंस ले लेते थे, दूसरों को आने नहीं देते थे। फॉरेन कंपटीशन ना आने का एक नुकसान ये हुआ कि हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं कर पाए अपनी, जैसे दुनिया बदल रही थी हम खुद को नहीं बदल पाए। 1991 तक हमारी क्या पॉलिसी थी, पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थे, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही कंट्रोल डेवलपमेंट हुआ। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचाया गया बड़ी कंपनियों से, बड़ी कंपनी को फॉरेनर से बढ़ाया गया, बचाया गया। इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई हुई, कभी हमारे ऑटोमोबाइल नहीं बनते थे, बाहर से आते थे, वो हम बनाने लगे, रेल के पार्ट्स बनाने लगे, रेल इंजन बनाने लगे, काफ़ी कुछ कंट्री ने किया PSUs से। देन फूड ग्रेन में हम सेल्फ सफिशिएंट हुए। कोई टाइम ऐसा था जब हमारे देश में अकाल पड़ा था, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे नेहरू जी की डेथ के बाद, लेकिन तब ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन आए, जिससे देश में एग्रीकल्चर में हरित क्रांति और मिल्क प्रोडक्शन में श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन आया। 1991 तक की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हमने क्या अचीव किया, हमारी GDP बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई हुआ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, यानी हेल्थ हाउसिंग इन सब पे खर्च किया गया, इनमें इम्प्रूवमेंट आया। हमारा डेथ रेट काफ़ी नीचे आ गया, 27 था वो 8 आ गया 1990 तक। कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा इकॉनमी में, प्राइवेट सेक्टर के पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स होने लगे। लेकिन एक लेवल के बाद क्योंकि PSUs का डोमिनेशन काफ़ी था और प्रोटेक्शनिज्म था इकॉनमी में, तो उससे गरीबी भी बढ़ी, क्योंकि फिर जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके पास सारे रिसोर्स जाने लगे। महंगाई बढ़ी एक लेवल के बाद, क्योंकि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, हमने एक्सपोर्ट पे कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन कई बार हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते थे, जैसे कि मेडिसिन्स, क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना ही करना था। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शुरू में कम हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगी और पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपोलीज थी वो काफ़ी इनएफिशिएंट हो गई। तो ये वाला चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी का, आपको देखना है 1950 से 1990 के बीच में कंट्री ने कैसा परफॉर्म किया। हमारी जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप प्रिपेयर करिएगा, इजी चैप्टर है। 1950 से 1990 तक हमारे 7 5-year प्लान चले थे, उसमें आपको देखना है कैसे कैसे किस तरह से हर प्लान में हमने अचीवमेंट किया था। मेनली फर्स्ट प्लान और 1985 से 1991 तक के बीच में जो हुआ उस पर आपको ध्यान देना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को ठीक से प्रिपेयर करिएगा। आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता।